Hello. To loosely paraphrase Charles Dickens, it is truly the best of times and the worst of times. We have a vaccine while some states are grappling with a second wave of COVID. There are few things that we can still consider a constant. The last 8 years, the New Indian Express is, without a break, brought you the best conversations around India's education by bringing the biggest and the most powerful people in India to Chennai for the Think Edu Conclave, which is, we'd like to believe, India's largest and longest running education conclave. But we are not doing that this year. No, this year is different. But you know that already. We are doing it this way, virtually. But as Ben Parker fictitiously told Spider-Man, with great power comes great responsibility. And so we continue to ask questions to people in power, but we are doing it responsibly by making sure it's virtual and wearing masks when needed, and bringing these great conversations right to your mobile phones. So sit back, tune in, comment, and let those ideas flow. Think Edu is back. Hello, welcome and namaskar. 8 years ago, we at the New Indian Express embarked on a journey. More than most people, we understood that the future of the country could only be shaped by harnessing the power of our young leaders and youth, using education as both sword and a shield. And so we decided that we needed to start a conversation with all the stakeholders. Powerful conversation that would lead to better policy, more accountability, better realization, and best education. All of which was aimed at Indianizing of Indian education for an Atmanirbhar Bharat, a best India for all of us. Today, we step into our 9th chapter. We do so with mixed emotions, with pride because we have hosted 8 epic editions with some of the most powerful people India has ever known. And the tinge of sorrow as well that the COVID has coerced us to carry this year's edition forward virtually only. We are missing all the young audiences. Think Education as a platform brings with it impressive numbers and erudite scholars, starting with 72 speakers across 13 sessions during our inaugural conclave in Chennai back in 2013. We reached a zenith by hosting a staggering 32 sessions in 2020. Our honor roll is even more impressive this time. From former president like the late Abdul Kalam to late Pranab Mukherjee to Chief Minister from Tamil Nadu, Andhra Pradesh, Chhattisgarh and Union Territory of Delhi, Union Minister from across fields like Prakash Javadekar, Smriti Irani to parliamentarians from across party lines. Ghulam Nabi Azad, Supriya Sule, Shashi Tharoor to name the couple of them. The list is endless and I could spend hours talking about how much we have learned from our 428 speakers across 120 sessions. We have had former presidents, sitting ministers, veteran bureaucrats and educationists, and highly regarded thinkers and scholars. We have had conversations around academic excellence, indigenous research, and the future of storytelling. We have made headlines, we have sparked debates, and we have generated a couple of controversies as well. But we have always encouraged deep thinking, thoughtful action, and active debates. Now I will instead reflect on what we have in store for you this year. As do every year, we have brought to you engaging discussions and illuminating conversations about new ideas and fresh thinking from India's finest thinkers, scientists, businessmen, and storytellers. And all of it is to discuss the lessons we need for the new world, and make no mistake about it. That is precisely what it is, a new world, a world beyond this virus. A world where education will set us apart as Indians, as proud Indians, as prosperous Indians, as global citizen leaders. From artificial intelligence versus human mind, to the idea of India versus the identities of India, from the power of Sanskrit to the best of our epic traditions,
from the possibilities of Indian research to the prevalence of anti-intellectualism. You will find in the sessions an echo and more of contemporary conversations and dialogues. Among our speakers are some of the world's best minds. From Union Minister Ramesh Pokhriyal Nishank to Nitin Gadkari to Infosys co-founder Chris Gopalakrishnan, best-selling author Amish Tripathi to the man who helmed Facebook and Amazon in India, we have an exciting array of speakers for you. I have no doubt that we will spark a debate and discussion with every session. Sow the seeds of change in young mind and spread hope for a better tomorrow. Stay safe, watch, think, act. Here is to a better tomorrow. We are counting on you. I get my gratitude to you and to Professor Vaidya Subramaniam of Shastra University for standing with us as partner during our journey of discovery. Debate, dissent, discussion is part of Indian tradition. We hope these survive and thrive in future as well. Now I invite Dr. Pokhriyal, our Union Education Minister, who has steered the new education policy, which is going to start the process of Bhartiyakaran of our Indian education, to deliver his inaugural address. Welcome, Dr. Saab. Please, stage is yours. मैं वरिष्ठ पत्रकार श्री प्रभु चावला जी और द न्यू इंडियन एक्सप्रेस ग्रुप को शिक्षा से जुड़े इस कॉन्क्लेव का आयोजन कर विद्यार्थियों में जागरूकता पैदा करने के लिए बहुत धन्यवाद देना चाहता हूँ। मुझे जहाँ तक पता है कि यह कॉन्क्लेव आप 2013 से लगातार आयोजित कर रहे हैं और इसमें भाग लेने वाले सभी प्रख्यात शिक्षाविद हैं, सभी अधिकारी वर्ग है, शिक्षा से जुड़े न केवल शिक्षक हैं बल्कि शिक्षाविद भी हैं और विभिन्न क्षेत्रों के लोग हैं जो भारतीय शिक्षा को सुदृढ़ और गुणवत्तापरक बनाने की दिशा में बेहद सकारात्मक चर्चा करते हैं। और मैं आज भी जो भारतीय शिक्षा को सुदृढ़ और गुणवत्तापरक बनाने की दिशा में जो लोग विचार विमर्श करने के लिए एकत्रित हुए हैं, मैं उन सभी लोगों का आभार प्रकट करता हूं। मैं उनको शुभकामना भी आप सबको देना चाहता हूं कि शिक्षा, क्योंकि किसी भी व्यक्ति का, किसी समाज का, किसी राष्ट्र का, किसी परिवार का आधारभूत स्तंभ है। इसको रीढ़ की हड्डी कहा जाता है और इस शिक्षा की गुणवत्ता को बनाने के लिए, बढ़ाने के लिए जो एक जुनून के साथ आप सब लोग जुटे हुए हैं, मैं आप सबका अभिनंदन करना चाहता हूँ। आप सबको मालूम है कि भारत की जो शिक्षा थी वो पूरे विश्व में अद्भुत थी हमेशा। यदि आप प्राचीन भारत को देखेंगे तो तक्षशिला, नालंदा और विक्रमशिला जैसे विश्वविद्यालय इस देश के अंदर थे और जहाँ पूरी दुनिया के लोग ज्ञान, विज्ञान, अनुसंधान, नवाचार, व्यवहार, आचार, संस्कार, जीवन मूल्य, दर्शन, सब विषयों का अध्ययन करने के लिए मेरे हिंदुस्तान में आते थे, मेरे भारत में आते थे और यहाँ से शिक्षा ग्रहण करके वो वापस जाते थे। आप सबको मालूम है कि देश सैकड़ों वर्षों तक की गुलामी की थपेड़ों में रहा और जिसके कारण वो सारा हमारा जो विश्व गुरु भारत का जो ताकत थी वो उसको छीनने की कोशिश होती रही। लेकिन आज हम स्वाधीन हैं और मुझे ये कहते हुए खुशी होती है कि देश की आज़ादी के बाद बहुत आमूल चूल परिवर्तन के साथ देश के प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में हम नई शिक्षा नीति 2020 को लेकर के आए हैं। भारत को आत्मनिर्भर बनाना और इसका भारतीयकरण करना, भारत को एक सूत्र में पिरोई रखना, जोड़ना, इसका गांव अंतिम छोर तक के छात्र से लेकर के और शिखर तक की शिक्षा, विश्व स्तर की शिक्षा और उसकी गुणवत्ता
को बनाए रखना इस जो अभूतपूर्व परिवर्तन है उसका एक हिस्सा है। हम लोगों ने भारतीय भाषाओं को, जैसे कि आपको मालूम है कि ये जो नई शिक्षा नीति है वो तमाम परिवर्तनों को लेकर के आई है। और यदि देखेंगे तो 10+2 को हटाकर थकी और पिटी व्यवस्था को अब उसको एक तरफ करके अब 5+3+3+4 लाई हैं, और 5 को भी हमने 3+2 में जोड़ा है। 3 वर्ष प्री प्राइमरी में रहेगा, और आंगनबाड़ी में भी, क्योंकि 3 वर्ष से 6 वर्ष तक के बच्चे का जो मस्तिष्क का विकास है, हमारे वैज्ञानिकों ने, विशेषज्ञों ने कहा है, और यूनेस्को ने भी इस बात को बल दिया है कि 3 वर्ष से 6 वर्ष तक के बच्चे का जो मस्तिष्क का विकास है वो बहुत तेज़ी से होता है, और वो अवसर हम हाथ से नहीं जाने देना चाहते, ताकि उसको खेल खेल के माध्यम से किस तरीके से उसके अंदर की ऊर्जा को कैसे करके और विकसित किया जा सकता है। और आप यदि देखेंगे तो ये आमूलचूल परिवर्तन के साथ जो 6वीं से ही वोकेशनल एजुकेशन दे रहे हैं, वो भी इंटर्नशिप के साथ दे रहे हैं, जहाँ अंक ज्ञान और अक्षर ज्ञान होगा। वहीं शिक्षणेतर गतिविधियाँ, जिसमें सांस्कृतिक कार्यक्रमों से लेकर संस्कृति, सभ्यता, परंपराओं के जुड़ाव से लेकर के खेल और योग, उसके साथ साथ जो तीसरा बहुत महत्वपूर्ण विषय है वो है उसका कि वो वोकेशनल अंक ज्ञान, अक्षर ज्ञान, शिक्षणेतर गतिविधियाँ और वोकेशनल एजुकेशन, वो भी इंटर्नशिप के साथ, ताकि वो व्यावहारिक रूप में अपनी जो प्रतिभा है उसका वो विकास कर सके, उसके अंदर जो शक्तियाँ हैं वो शक्ति बाहर निकल करके एक दिशा पा सके। और स्कूली शिक्षा से ही आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को लाना, ये भी दुनिया का पहला ऐसा उदाहरण होगा जो स्कूली शिक्षा से आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को पढ़ाएगा। मूल्यांकन का भी टोटली तरीका बदल दिया इस शिक्षा नीति ने। अब ये जो रिटर्न जो पहल थी वो अब ऐसा नहीं, परिणामों पर आधारित ये शिक्षा होगी, बिल्कुल अलग प्रकार से इसका मूल्यांकन होगा। और मूल्यांकन भी किस तरीके से होगा कि बच्चा अपना स्वयं का मूल्यांकन करेगा, वो अपने को अपने नंबर देगा कि वो अपने को किस योग्य पाता है, उसको कितने नंबर अपने को देनी है। स्वाभाविक कि आप जान सकते हैं कि किसी भी व्यक्ति को, किसी इंसान को अपने बारे में ज़्यादा पता होता है, वो अपनी कमियों को ज़्यादा समझ सकता है। और जिस दिन उसने ये कमियों को समझ करके ये देखना शुरू किया कि उसको अपनी कमियों या अच्छाइयों के पर नंबर भी देना सुनिश्चित करना है, तो वो अपना मूल्यांकन स्वयं करेगा। तो वो स्वयं भी मूल्यांकन करेगा, उसके अध्यापक भी मूल्यांकन करेंगे, इतना ही नहीं तो उसका अभिभावक भी मूल्यांकन करेगा कि हाँ, जो उसका बच्चा है वो यदि उसको नंबर देनी है तो कितने में से कितने नंबर वो उसके लिए देगा। वो भी अपने बच्चे को कमज़ोर नहीं देखना चाहेगा, उसकी तैयारी करेगा और उसको अच्छे से नंबर जो मूल्यांकन है अपनी सही आंकलन करेगा, क्योंकि उसको पता है कि अध्यापक भी उसका मूल्यांकन करेगा, स्वयं बच्चा भी मूल्यांकन कर रहा है। इतना ही नहीं तो उसका बगल में बैठे रहने वाला साथी भी उसका मूल्यांकन करेगा। तो साथी जब मूल्यांकन करेगा तो स्वाभाविक ही है कि बच्चा अपने साथी को भी जो उसके अंदर है ज्ञान, उस ज्ञान को उसके साथ बांटने की कोशिश करेगा, क्योंकि उसको मालूम है कि मैं उसको अवगत नहीं कराऊंगा तो ये मेरे को कम नंबर देगा। उससे संबंध भी बना करके रखेगा, जहाँ संबंधों को उसको मालूम है कि इससे संबंध नहीं बिगाड़ने हैं, और ये भी मालूम है कि उसके साथ ज़्यादा से ज़्यादा संवाद भी करना है, ताकि उसको मेरी योग्यता के बारे में जानकारी हो और वो मेरे को अच्छे नंबर दे। तो ये 360 डिग्री होलिस्टिक मूल्यांकन उसका होगा। तो मूल्यांकन भी उसको अब उसको रिजल्ट कार्ड नहीं मिलेगा, उसको अब प्रोग्रेस कार्ड मिलेगा। क्या प्रोग्रेस की उसने, क्या प्रगति की उसने। तो इस आमूलचूल परिवर्तन के साथ हम इसको ला रहे हैं, और वोकेशनल जो एजुकेशन है वो तो बच्चों को 10वीं तक 12वीं तक जाते जाते वो ऐसा आत्मनिर्भर तरीके से उसको खड़ा कर देगा
कि किसी भी बच्चे को इंटर करने के बाद कहीं भटकने की ज़रूरत नहीं होगी। उसकी आधारशिला इतना है कि वो कुछ भी कर सकता है, जो उसके आसपास जो उसने कौशल उसका विकसित हुआ है उसको वो आगे बढ़ा सकता है। और उच्च शिक्षा में भी आप आएंगे तो कोई भी विषय ले सकते हैं, किसी भी विषय के साथ कोई भी विषय ले सकते हैं। अब ये विषयों का जो है जिस तरीके से बंधन था, इन बंधनों को तोड़ दिया गया है, बिल्कुल पूरा मैदान खाली कर दिया है। इसलिए छात्र छात्राएं भी बहुत खुश हैं कि हाँ, जो विषय उनका अपना हृदय के निकट है, अपने मन के निकट है, उस विषय को आगे बढ़ाएंगे। और अब वो सामान्य तय जो थोपी हुई व्यवस्था थी उससे वो मुक्त हो जाएगा। किसी भी विषय के साथ किसी भी विषय को ले सकता है। वो इंजीनियरिंग के साथ वो साहित्य ले सकता है, वो गणित के साथ संगीत ले सकता है, कुछ भी जो उसको चाहिए, जो उसमें जिसमें प्रगति करने की उसकी क्षमता है उस विषय को लेकर। लेकिन यदि कोई विषय उसने लिया और बीच में उसको लगता है कि नहीं, अभी इस विषय को उसको नहीं संभव है, या परिस्थितिवश वो 1 साल में छोड़ करके कई बार जाना पड़ता है, तो उसको 1 साल का भी सम्मान मिलेगा। वो हताश और निराश नहीं होगा। 1 साल में उसको सर्टिफिकेट मिल जाएगा। और यदि 2 वर्ष में छोड़ के जाता है तो उसको डिप्लोमा मिल जाएगा, तब भी निराश होने की ज़रूरत नहीं है। और 3 साल में उसको डिग्री मिलेगी। लेकिन मुझे लगता है कि यदि वो कई बार परिस्थितियाँ होती हैं, कठिनाई होती है, छोड़ने के लिए छात्र छात्रा विवश होते हैं, लेकिन उसके बाद यदि उसको लग रहा है कि नहीं, वो अब जहाँ मैंने छोड़ा था वहाँ से मुझे अब अपने करियर को और आगे बढ़ाना है, तो वो आ सकता है और जहाँ उसने छोड़ा है वहीं से वो शुरू कर सकता है। जो एकेडमिक बैंक ऑफ क्रेडिट बना रहे हैं, वो क्रेडिट का जो बैंक होगा उसकी चाबी उसके हाथ में होगी। जहाँ उसने छोड़ा था वहीं से वो अपने अध्ययन आगे कर सकता है, जब चाहे आ सकता है, उसको कोई रोक टोक नहीं होगी। इस आमूलचूल परिवर्तन के साथ आ रहे हैं। और इस शोध की संस्कृति अभी तक क्या था, हम लोग को पैकेज की होड़ में थे, और इसीलिए जो हमारे देश की प्रतिभा थी सब पलायन कर रही थी। उनको लगता था ये पैकेज बड़ा हो गया तो बस वो फिर अपनी उसी होड़ में लग जाता था। लेकिन अब पेटेंट की होड़ लगेगी, क्योंकि जब हम अपनी चीज़ हमारे पास है, हम शोध और अनुसंधान करेंगे। और इसी पर जब मैं समीक्षा करता हूँ तो अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर अभी हम शोध और अनुसंधान के अभाव के कारण, कुछ कमियों के कारण वो अंतर्राष्ट्रीय प्रतिस्पर्धा पर नहीं जा पाते। हालांकि मुझे इस बात को कहते हुए खुशी है कि पूरी दुनिया के 40,000 विश्वविद्यालयों में अभी पीछे के कुछ दिन पहले की उस ने जब अपनी रैंकिंग को घोषित किया, तो हमारे जो संस्थाएं हैं प्रथम 100 में पहली बार 12 संस्थाएं विषयवार में प्रथम 100 में आई हैं, दुनिया में अपना स्थान बनाया। और हम तेजी से आगे बढ़ रहे हैं। और इसीलिए नेशनल रिसर्च फाउंडेशन में 50,000 करोड़ रुपया 5 वर्ष में केवल शोध और अनुसंधान को मिलेगा, क्योंकि हम इस शिक्षा नीति के तहत टैलेंट को भी ढूंढेंगे, उसका विकास भी करेंगे, उसका विस्तार भी करेंगे। लेकिन इस टैलेंट के साथ हम उत्कृष्ट कोटि का कंटेंट भी देंगे। टैलेंट तो है, लेकिन उत्कृष्ट कोटि का यदि कंटेंट उसके साथ नहीं है तो वो टैलेंट बेकार हो जाएगा। तो उत्कृष्ट कोटि का कंटेंट उस टैलेंट के साथ जोड़ेंगे, और टैलेंट और कंटेंट दोनों मिल करके नए पेटेंट को पैदा करेंगे। उस दिन भारत आत्मनिर्भर भारत होगा। और जो मेरे देश के प्रधानमंत्री 21वीं सदी का स्वर्णिम भारत की बात करते हैं, और जो भारत मेक इन इंडिया, डिजिटल इंडिया, स्किल इंडिया, स्टार्टअप, स्टैंडअप पोस्ट करके गुजरेगा और $5 ट्रिलियन की अर्थव्यवस्था की दिशा में आगे कदम बढ़ाएगा, उसकी आधारशिला है ये नई शिक्षा नीति। और इसलिए ये जो नई शिक्षा नीति है वो नेशनल भी है, ये इंटरनेशनल भी है, ये इम्पैक्टफुल भी है, ये इंटरैक्टिव भी है, ये इनोवेटिव भी है, तो ये इंक्लूसिव भी है। यदि इसकी खूबसूरती को देखेंगे तो सब पूरी देश नहीं, पूरी दुनिया उसका उत्सव मना रही है, खुशियाँ मना रही है, और सोच रही है कि पहली बार ऐसी शिक्षा नीति आ रही है जो मानव को मानव भी बनाएगी और उसकी शिखरता तक भी उसको ले जाएगी। वो चाहे ज्ञान हो, विज्ञान हो, अनुसंधान हो, नवाचार हो, और तकनीकी के क्षेत्र में भी नेशनल
एजुकेशन टेक्नोलॉजी फोरम का गठन कर रहे हैं, जो अंतिम छोर के व्यक्ति को तकनीकी ज्ञान हासिल कराएगी और उसकी तकनीकी को और बढ़ा करके उसको जो वोकल फॉर लोकल है वो लोकल फॉर ग्लोबल तक जा सकेगी, अंतर्राष्ट्रीयकरण तक जा सकेगी। यही इसका रास्ता है। और इसलिए वोकेशनल एजुकेशन, जो उसके कौशल का विकास करना और उसके बाद उसको स्टार्टअप तक भेजना और स्टार्टअप से मेक इन इंडिया तक पहुंचाना, यह उसका रास्ता है। और इसलिए मुझे लगता है कि हम मातृभाषा में प्रारंभिक शिक्षा अपनी मातृभाषा में लाई हैं, क्योंकि सभी वैज्ञानिकों का, विशेषज्ञों का है कि जो अपनी अभिव्यक्ति अपनी मातृभाषा में हो सकती है वो किसी सीखी हुई भाषा, थोपी हुई भाषा में नहीं हो सकती। और इसीलिए ये प्रारंभिक शिक्षा हम अपनी मातृभाषा में लेकर आ रहे हैं। ये भी मेरे लिए बहुत खुशी का विषय है, संतोष का विषय भी है कि पूरे देश ने इसको बहुत अच्छा माना है कि पहली बार ऐसा हो रहा है जब अपनी मातृभाषा में छात्र पढ़ेगा और अपनी प्रतिभा का प्रदर्शन करेगा। और जो हमारे संविधान में प्रदत्त हमारे अनुसूची 8 में 22 भारतीय भाषाएं हैं, जिसमें तमिल, तेलुगु, मलयालम, कन्नड़, गुजराती, मराठी, बंगाली, उड़िया, असमिया, उर्दू, संस्कृत, हिंदी, ये लगभग 22 भारतीय भाषाएं हैं। अद्भुत क्षमता है इनमें, ज्ञान है, विज्ञान है, नवाचार है, इसमें आचार है, व्यवहार है, इसमें संस्कार है, इसमें जीवन मूल्य भी हैं। और ऐसी परंपराएं हैं जिन परंपराओं के आधार पर हम पूरे विश्व में अपना एक अलग सा स्थान हमने बनाया है। तो इसलिए वैसे भी आपने देखा होगा कि ये विश्व गुरु भारत, ये इसने हमेशा सभी पूरी दुनिया की चिंता की है। वसुधैव कुटुम्बकम की भावना को लेकर के हम हमेशा चले हैं। और सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामया की नई धरती पर एक भी प्राणी दुखी होगा तब तक मैं सुख का एहसास नहीं कर सकता। मैं इतना पुरुषार्थ करूंगा कि मैं खुशियों को बांटूं, सर्वे भवन्तु सुखिनः की से लेकर के, और सैना भवतु सैनो भुनक्तु सैवीर्यम, नहीं, साथ साथ चलेंगे, साथ साथ खाएंगे, साथ साथ पुरुषार्थ करेंगे। हम सबको साथ कर लेकर के चलना चाहते हैं। और असतो मा सदगमय तक की हमारी यात्रा है कि नहीं, असत्य पर विजय प्राप्त करके सत्य की ओर लेकर के जाएंगे। और तमसो मा ज्योतिर्गमया, तमस को, जो ये अंधेरा है, इसको हम चीर करके नई रोशनी को ला करके आगे बढ़ाएंगे। तो ये जो इच्छा शक्ति है वो इस नई शिक्षा नीति में समाहित है। ये जीवन मूल्यों की आधारशिला पर खड़े होकर के और शिखरता की शिक्षा देने के लिए ललक रखती है। तो मुझे भरोसा है कि जो आपकी जो ये अभियान है आपका, ये जो आप कॉन्क्लेव मनाते हैं, निश्चित रूप में नई शिक्षा नीति आपकी आशाओं पर, अपेक्षाओं पर न केवल खरी उतरेगी, बल्कि एक नए भारत के निर्माण की दिशा में ये आधारशिला बन करके मजबूती के साथ पूरे विश्व के फलक पर हिंदुस्तान का माथा ऊंचा करेगी, हिंदुस्तान को ज्ञान की महाशक्ति भी बनाएगी। और मैं ये समझता हूँ कि जिस तरीके की नई शिक्षा नीति हम लेकर के आए हैं, उसका पहला रास्ता इस कोविड काल को पूरी दुनिया में जाना जाएगा। ये जो 2020 का जो वर्ष गया है, उसको एक तो कोविड के कारण जाना जाएगा और दूसरे में नई शिक्षा नीति 2020 के कारण भी जाना जाएगा। कोविड के ही दौरान हम इस नई शिक्षा नीति को भी लेकर के आई है। और आपने देखा है जब देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने कहा कि चुनौतियों का कैसे, ये बड़ी चुनौती है, पूरी दुनिया जब कोविड के महासंकट से होकर के गुजर रही थी, पूरी दुनिया ठहर सी गई थी, और तब दुनिया की आंखें हिंदुस्तान की ओर थी, क्योंकि हिंदुस्तान दुनिया का सबसे बड़ा लोकतांत्रिक देश है। और यदि इसके शिक्षा के वैभव को देखा जाए तो 1000 से अधिक यहाँ विश्वविद्यालय हैं और 45,000 से अधिक डिग्री कॉलेज हैं। यहाँ अध्यापकों की संख्या 1,09,10,00,000 से भी अधिक है। 1,10,00,000 अध्यापक कई दुनिया के देशों की कुल आबादी इतनी नहीं है। और स्कूली शिक्षा को देखेंगे तो 15 लाख से भी अधिक स्कूल हैं हमारे पास। और यदि कुल छात्र छात्राओं की जनसंख्या देखें तो दुनिया के तमाम दर्जनों देशों के बराबर अकेले छात्र संख्या है, बल्कि अमेरिका की आबादी से भी अधिक 33 करोड़ छात्र और छात्राएं इस देश के अंदर है। युवा देश है
आगे बहुत 30-35 वर्षों तक ये यंग इंडिया रहने वाला है। और इसलिए मैं ये समझता हूँ कि जो ये नई शिक्षा नीति है, इस शिक्षा नीति ने ये जो चुनौती भरे क्षण थे जब पूरी दुनिया संकट से गुजर रही थी, तब हमारे जो छात्र छात्राएं मेरे देश के प्रधानमंत्री के आह्वान पर कि इन चुनौतियों का कैसे मुकाबला हो सकता है, ताकत के साथ इन परिस्थितियों का मुकाबला किया था और उन चुनौतियों को अवसर में तब्दील कर दिया था। किसी को शायद पता भी नहीं होगा, जब लोग घरों में कैद थे तब मेरे IIT, मेरे विश्वविद्यालय, मेरे आईसर, मेरे IIM तमाम संस्थानों के छात्र शोध और अनुसंधान की प्रयोगशालाओं में मेरे अध्यापकगण थे। अध्यापकों ने भी एक योद्धा की भूमिका को निभाया है। अन्यथा आपको लगता है कि 33 करोड़ छात्र छात्र घरों पर कैद हो जाए, और ऑनलाइन दुनिया का सबसे बड़ा उदाहरण होगा कि हमने घरों को ही स्कूलों में तब्दील कर दिया। घर ही कि नहीं तो किसी अभिभावक शायद सोच भी नहीं सकता था कि उसका बच्चा घर पर ही पढ़ना शुरू कर देगा। ये भारत की ताकत है, मेरे देश के प्रधानमंत्री की प्रेरणा है कि हम 33 करोड़ छात्र छात्राओं को लगभग सबको हम ऑनलाइन पढ़ रहे। जो ऑनलाइन पर नहीं आ सकते थे उनको विभिन्न तरीक़ों से, रेडियो के माध्यम से, विभिन्न माध्यमों से हमने उस तक भी क्या वर्ष खराब नहीं जाने दिया, जबकि दुनिया के विकसित देशों ने अपने को पीछे कर दिया हो, एक साल पीछे कर दिया हो, तब हमने अपने देश के छात्र का एक वर्ष खराब नहीं होने दिया, व्यर्थ नहीं जाने दिया। और पूरी दुनिया ने इसको देखा। JEE नीट की जो कोरोना काल की दुनिया की सबसे बड़ी परीक्षाओं को कराने में हम सफल रहे हैं। तो ये जो नई शिक्षा नीति आई है वो इन चुनौतियों का मुकाबला करने के लिए आई है। तभी तो हमारे छात्रों ने वेंटिलेटर बनाए। देश में वेंटिलेटर की कितनी कमी थी, हमारी टेस्टिंग किट बनाई, ड्रोन बनाई, मास्क बनाई, और न केवल अपने देश में आपूर्ति की बल्कि दुनिया तक भी हमारी चीज़ें गई हैं। हमारे देश के प्रधानमंत्री ने वसुधैव कुटुंबकम की भावना को प्रतिपादित किया है, बताया है दुनिया को कि लो, यदि तुम संकट में हो तो हम आपकी मदद के लिए खड़े हैं। मैं इस अवसर पर आप सबका मैं धन्यवाद देना चाहता हूँ, बधाई देना चाहता हूँ। और जो आप लगातार इस दिशा में प्रयासरत हैं गुणवत्ता को बनाए रखने के लिए और भारत की शिक्षा व्यवस्था को और सुदृढ़ करने के लिए जो आप ये लगातार कॉन्क्लेव करते हैं, मैं आपका भी अभिनंदन करता हूँ। और मुझे भरोसा है कि भारत ज्ञान की महाशक्ति के रूप में जिस तरीके से उभर रहा है वो दिन दूर नहीं जब पूरे विश्व में भारत जो हमारा भारत था, जो जिसको विश्व गुरु के रूप में देखा जाता था, जाना जाता था, पहचाना जाता था, वो भारत फिर उस अपनी गरिमा को पाएगा और पूरे विश्व में विश्व गुरु के रूप में ज्ञान, विज्ञान, अनुसंधान और नवाचार की दिशा में मार्गदर्शन देगा, अपना योगदान देगा। आप सबको एक बार में मेरा अभिनंदन, बहुत बहुत धन्यवाद, नमस्कार। We hope you really enjoyed that session. You can find the entire schedule of ThinkEdu 2021 on our website eventexpress.com. You can watch the rest of the sessions on our YouTube channel, eventexpress.com, newindianexpress.com and edxlive.com. You can also check out our Facebook and Twitter handles. Thank you for watching.